Hi, welcome back to my channel. Wow, Commerce with Madhu. Myself, Madhu Setia, Assistant Professor in Commerce. Today, we will discuss normal rate of income tax for assessment year 2020-21 for individuals. Now, these are the rates for resident individuals whose age is below 60 years or HUF or association of person or body of individuals except cooperative society. Now, if their income is above up to 2,50,000, rate of tax is 0%. It means up to the income of 2,50,000 they will have to pay no tax. From 2,50,000 to 5 lakh tax rate is 5%. From 5 lakh to 10 lakh tax rate is 20%, and above 10 lakh tax rate is 30%. It means as they go up in higher income group, they will have to pay more tax. They come in the more tax category. जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव टू पे मोर टैक्स. सेम हियर. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर सीनियर सिटीजन्स. सीनियर सिटीजन मीन्स द सिटीजन्स हुज एज इज अबव 60 years but less than 80 years. Now, if their income is up to rupees 3 lakhs, they will have to pay no tax. And if their income is from rupees 3 lakh 1 to 5 lakh, they will have to pay tax at the rate of 5%. And if their income is from 5 lakh 1 to 10 lakhs, they will have to pay tax at the rate of 20%. And above 10 lakhs, they will have to pay tax at the rate of 30%. यहाँ भी सेम है कि जैसे जैसे वो हायर इनकम ग्रुप में जा रहे हैं उनका टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है. Now the next is super senior citizens. Now do you know who are the super senior citizens? Super senior citizens means those citizens whose age is 80 years or more at any time during the previous year. Now if their income is up to rupees 5 lakh, they will have to pay no tax. From 5 lakh 1 to 10 lakh, they will have to pay tax at the rate of 20%. And from above 10 lakh, they will have to pay tax at the rate of 30%. Similarly here, यहाँ पे भी जब वो हायर इनकम ग्रुप में जाते हैं तो टैक्स रेट बढ़ जाता है. नाउ सरचार्ज. व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज इज चार्ज ऑन द हाई इनकम ग्रुप पीपल. इट इज द टैक्स ऑन टैक्स. मीन्स जो टैक्स कैलकुलेट होता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है हाई इनकम ग्रुप पीपल से. जैसा कि इफ द पीपल हैव इनकम फ्रॉम 50 lakh to 1 crore, they will have to pay surcharge at the rate of 10%. From 1 crore to 2 crores, they will have to pay surcharge at the rate of 15%. From 2 crores to 5 crores, they will have to pay surcharge at the rate of 25%. And above 5 crores, they will have to pay surcharge at the rate of 37%. जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है सरचार्ज का रेट भी बढ़ता जाता है. Now the next is cess. It is paid by all the persons. It is not affected by the income of the person. Means education cess at the rate of 2% चार्ज होता है each and every person से, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप कैटेगरी में आते हैं. Now the next is secondary and higher education cess at the rate of 1%. Health cess at the rate of 1%. Means total health and education cess at the rate of 4%. Now the next is special rates of income tax. स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स कुछ इनकम्स हमारी ऐसी होती हैं जिन पर स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 15%. एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच कम्स अंडर सेक्शन 111A. नाउ द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 20% टैक्स. And lottery, crossword puzzles and horse racing comes under the category of 30% tax rate. Means ये ऐसी इनकम्स होती हैं जिन पे इन स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज होता है. Now the next is steps to compute income tax. अब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? टैक्स के रेट तो हमें पता चल गए. ना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट ग्रोस टोटल इनकम. ना ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है? एक पर्सन को डिफरेंट हेड से इनकम होती है.
एज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जरूरी नहीं है हर पर्सन को इन पांचों हेड से इनकम हो सकता है किसी पर्सन को ओनली 1 हेड से इनकम हो, दैट इज सैलरी, या किसी को 2 हेड से इनकम हो, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, किसी को 3 हेड से भी इनकम हो सकती है, किसी बहुत कुछ लोग होते हैं उन्हें 5 हेड से भी इनकम होती है। नाउ इन 5 हेड से होने वाली इनकम को टोटल कर दिया जाता है। ग्रोस टोटल इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन्स प्लस अदर सोर्सेज। इनका टोटल करके हम ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। अब टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम वो इनकम होती है जिस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या यूज होता है? ग्रोस टोटल इनकम इज इक्वल टू होता है ग्रोस नेट इन टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रोस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। एक इंडिविजुअल को अंडर सेक्शन 80C टू 80U डिडक्शन दी जाती हैं। ये डिडक्शंस किस पे होती हैं? उसकी इन्वेस्टमेंट्स पे होती हैं, डोनेशंस पे होती हैं, या उसने कहीं मेडिक्लेम करवा रखा हुआ है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंडर डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शंस आती हैं, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ डिडक्शंस। नाउ ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन लेस कर देते हैं, दैट कम्स टोटल इनकम। आफ्टर इस टोटल इनकम पे हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एज एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन। उस पर्सन के एज और स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उसकी इनकम डिफरेंट स्लैब रेट जो हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन कर ली जाती है। नाउ अब वो पर्सन टैक्स कितना अमाउंट पे करेगा? टैक्स का अमाउंट पे करने निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो अभी टैक्स हमने कैलकुलेट किया है उसमें से अगर उसने कोई ऑलरेडी टैक्स वो पहले पे कर चुका होता है, जैसे टीडीएस की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में उसने टैक्स वो ऑलरेडी पहले पे कर चुका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन दैट केस वो टैक्स माइनस कर दिया जाता है, दैट इज टैक्स पेबल। नाउ द नेक्स्ट इज वी विल डू वन सम टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। For example, income of Mr. X from salary ₹6 lakhs, business 3 lakhs, from house property 5 lakhs, capital gains 2 lakhs, income from other sources 4 lakhs for assessment year 2020-21. He also paid life insurance premium of ₹1 lakh during the year. Now the tax payable shall be as under. इस क्वेश्चन में जो मिस्टर एक्स हैं उनको ऑल द 5 हेड से इनकम हुई है, सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड की इनकम का जब हम टोटल करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए हमने सैलरी 6 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख, बिजनेस 3 लाख, कैपिटल गेन्स 2 लाख, अदर सोर्सेज 4 लाख का टोटल किया, दैट कम्स 20 लाख। तो ग्रोस टोटल इनकम हमारी क्या आ गई? 20 लाख रुपीज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? ग्रोस टोटल इनकम जो हमारी 20 लाख है उसमें से डिडक्शन लेस कर देंगे जो अंडर सेक्शन 80C उस पर्सन को मिलेगी जो उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 लाख रुपीज, दैट कम्स टोटल इनकम ₹19 लाख। अब इस 19 लाख पे टैक्स की कैलकुलेशन होगी और वो कैसे होगी? फर्स्ट ₹2,50,000 पर नील। नाउ द नेक्स्ट ₹2,50,000 पे एट द रेट ऑफ 5%, दैट इज 12,500। नेक्स्ट ₹5 लाख पे एट द रेट ऑफ 20%, 5 लाख का आप 20% निकालेंगे, दैट कम्स 1 लाख। नेक्स्ट बैलेंस जो उसका बचेगा, बैलेंस क्या बचेगा? 19 लाख उसकी टोटल इनकम थी जिसमें से 10 लाख पे वो टैक्स पे ऑलरेडी कर चुका है। जो उसने कहाँ पे किया? फर्स्ट कैटेगरी 2,50,000 की, सेकंड कैटेगरी 2,50,000 की, थर्ड कैटेगरी 5 लाख की, तो 10 लाख पे वो टैक्स पे कर चुका। तो 19 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे, दैट कम्स 9 लाख। 9 लाख पे 30% के हिसाब से 2,70,000 टैक्स आ गया। अब इन तीनों टैक्स का टोटल करेंगे, दिस इज 3,82,500। नाउ द नेक्स्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 3,82,500 का आपने 4% निकाला, दिस इज 15,300। तो टैक्स पेबल इज 3,97,800। ये पर्सन सरचार्ज पे नहीं करेगा बिकॉज सरचार्ज जो पे करता है उसकी इनकम 50 लाख अबव होती है। 50 लाख अबव सरचार्ज चार्ज होता है
बट एजुकेशन सेस जो है, हायर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर पर्सन पे करता है, जो इस पर्सन के द्वारा पे किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज थैंक यू। नाउ इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।